A very warm and pleasant good morning to Honorable Director Sir, Principal Ma'am, dear teachers, and all the Facebook viewers who are watching us live. It gives me heartiest pleasure to welcome you all to this Mega Summer Camp 2021. This summer camp is an initiative by our school to give chance to everyone, irrespective of age group, to break free from the fear of Corona and to enjoy their heart out. And not just enjoy, this gives them a chance to learn also, and that too from the best. So once again, I welcome you all to Camp Conquerors 2021. After so long, such a bright and beautiful day has come. Let's brighten it more with the lighting of lamp. I request Honorable Principal Ma'am to please light the lamp. Thank you so much, ma'am, for giving an auspicious beginning to this day and to this event. Shubham karoti kalyanam arogyam nasampadam and now I request nasaya Jyoti namostute. Thank you for making this occasion so auspicious, Saran ma'am. Now I request our guiding star and our mentor to please share his verbal blessings on us and to inaugurate this mega event. Please welcome him. Hello, good morning to everybody. I'm glad to welcome you all today on this occasion of summer camp organized by Knowledge Gram. These type of activities which are being involved in this camp are going to take our students, the participants, a little higher than what they have today. I know that many students will be proficient in these activities already beforehand, but even then, involving them in for such a long time, like 1st June to 8th June, definitely will add some quality, some virtue to them. And I'm sure that the program has nicely been devised by the principal of ma'am of the school along with the teachers, and her team is going to do wonders. And on 7th day, all of you will feel that something has been added. You know, such kind of activities take you always, like you become more creative. And the moment you become creative, you become more responsible. The more is being more responsible, being more respected, and what is recognized. And that is the purpose of life. So such small things appear small in beginning, but actually they lead to a very higher state later in their lives. So participate enthusiastically, present, remain, follow, and see that how the program progresses. Because the program is meant for students and the parents. Without you, this program has no meaning. So please join us, and for the time remain with us as long as the program goes on. And please prepare yourself for the competition which will be held on 8th of this month after the program gets over. On the basis of the activities done and trained, you have to participate. So once again, I'll welcome you all my children, students, parents, teachers, viewers to this camp, which is a virtual camp. But yes, you can feel that we all are together, involved in a common purpose with a spirit to keep our activities become successful, to join and to learn something, and to then
to teach others whatever we learn. So that is life. Teaching, learning, sharing, caring is all the life all about. And we are going to start this. I thank you, my team, the team led by our principal ma'am, and all people have worked very hard in the last 3-4 days in preparation of this camp. And I'm sure that this is going to become a great event. And I bless and I pray to Almighty that please shower blessing to the team and the participants, so that whatever they learn forever and they learn to share. Thank you so much. Thank you so much, sir, for giving such a nice inauguration to this mega event. Now, जो viewers अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से तहे दिल से मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो आप हमारे साथ जुड़कर हम बच्चों का, पेरेंट्स का और सभी का उत्साह बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर से I welcome you all to the Camp Conquerors. Now, moving forward with the event, let me introduce to you our yoga trainer, Miss Sarmishta. Miss Sarmishta? Miss Sarmishta? Program of prayer was there? Any program of prayer was printed? Any prayer? Good morning, everyone. First of all, I would like to give a thanks to Knowledge Gram International School, respected director sir, honorable principal ma'am, and Priya ma'am for introducing me and for giving me this opportunity to give some bit of mine as a part of yoga to all the people out there, to all the students out there, to everybody who is watching us live. So before starting, I would like to give a short glimpse of the things that we are going to do today. So first, we will try to do a bit of concentration. Next, we will go on the breathing part, and then we will do some basic yogas. And in between, we will add some tips that will let you know how to add more healthier span and more healthier glimpse to your life. तो सबको फिर से सुप्रभात। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं योगा। शुरू करने के लिए सबसे पहले अगर आपने योगा मैट बिछा रखा है तो आप योगा मैट पे बैठ जाइए, या फिर अगर आपके पास योगा मैट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप फ्लोर पे, जमीन पे कोई भी मैट्रेस, कोई भी एक बेडशीट भी बिछा सकते हैं, बिछा के आप बैठ जाएं अच्छे से। जिन्हें बैठने में दिक्कत है, अगर चूंकि काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो जिनको बैठने में दिक्कत हो रही है तो वो चेयर पे भी बैठ सकते हैं, सोफा पे भी बैठ सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। हाथ की मुद्रा हम लोग ऐसे करके रखेंगे और इसे अपने घुटने पे रखेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, स्पाइनल कॉर्ड विल बी erect, straight, and we will close our eyes. Because yoga is something that needs to get connected to the supernatural. It's a journey. So this journey from the self to the self, connecting ourselves to the supernatural, this journey we will be doing in these 7 days, and I hope you all will be liking it. तो आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण शरीर शांत। आंखों को बंद रखते हुए अपने शरीर के हर एक अंग को देखने का प्रयास करें। Try to locate each part of your body by closing your eyes. Imagine each part of your body and try to relax it. Starting from your right shoulder,
दाहिने कंधे से शुरुआत करेंगे। दाहिने कंधे को रिलैक्स करें, बिल्कुल ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर लेफ्ट शोल्डर। दाहिने हाथ को ढीला छोड़े, बाएं हाथ को ढीला छोड़े। रिलैक्स योर राइट लेग, रिलैक्स योर लेफ्ट लेग, रिलैक्स योर राइट आईब्रो, रिलैक्स योर लेफ्ट आईब्रो, relax your right jaw muscle, relax your left jaw muscle, relax your upper lip, relax your lower lip, relax your whole body. संपूर्ण शरीर शांत, बिल्कुल ढीला छोड़ दे संपूर्ण शरीर को। एंड अ बिट ऑफ स्माइल ऑन योर फेस, एक हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे, माथे पे कोई शिकन नहीं, आंखें बंद रखेंगे। Now we will try to concentrate by closing our eyes and then imagining a lightning candle between our eyebrows. दोनों भौं के बीच में जहां औरतें बिंदी लगाती है, वहां पे जलती हुई मोमबत्ती की लौ होगी, उसको देखने का प्रयास करेंगे। We will try to imagine a lightning candle and we will concentrate ourselves on the flame of that candle. कैंडल के फ्लेम को देखते हुए अपने सांसों की आवाजाही पे भी ध्यान देंगे। Concentrate on the breath you are taking. The breath should be very normal, but then we will try to remind ourselves that every breath we are taking is having a lot of importance to our body. हर एक सांस जो आप लेते हैं, सांस के साथ साथ आप पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं, और हर एक सांस जो अंदर से बाहर जाती है, वो आपके अंदर के नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालती है। So every breath we are taking, we bring positive energy from the environment, and every breath we are exhaling, we are giving out or throwing out the negative energy. नॉर्मल ब्रेथ लेते रहेंगे, आंखें बंद रहेंगी और हल्की सी मुस्कान चेहरे पे बनी रहेगी। अब हम 3 गहरी सांसें लेंगे और हर 3 गहरी सांस के बाद ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 आंखें बंद रखेंगे और आंखें बंद रखते हुए अब हम शांति मंत्र पढ़ेंगे, ताकि इस योगा की जर्नी की शुरुआत अब हम कर सकें। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे,
तेजस्वनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखते हुए, by remaining the eyes closed, you will rub your palms, अपने हथेलियों को रख देंगे और धीरे से अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। उसकी गर्मी को महसूस करेंगे आंखों के ऊपर। इस प्रक्रिया को 3 बार करेंगे। We will repeat the process 3 times. And gently we will open our eyes. धीरे से अपने आंखों को खोल लेंगे। और अब यहां से हम शुरुआत करेंगे योगा की जर्नी का। तो जिस तरीके से हर एक एक्सरसाइज के पहले या हर किसी कार्य के पहले हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद अपने माइंड को एडजस्ट करते हैं, माइंड को सेट करते हैं कि उस कार्य को मुझे करना है, ठीक उसी तरीके से हमने प्रार्थना की और अब अपने शरीर को एडजस्ट करेंगे, वार्म अप करेंगे योगा के प्रक्रिया द्वारा और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कुछ आसनास करेंगे और उस आसना के बेनिफिट्स आपको मैं बताते जाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसे नहीं बैठेंगे कभी भी, ऐसे बैठेंगे। हाथ आपके पीछे की तरफ इस तरीके से रहेंगे और ये उठा हुआ नहीं रहेगा, ये नीचे की तरफ रहेगा। अब हम लोग शुरुआत करेंगे अपने पैरों से, टोज से शुरुआत करेंगे हम लोग। तो सांस लेते हुए टोज को, पैरों की उंगलियों को बाहर की तरफ और छोड़ते हुए पीछे की तरफ। So we will inhale and we will put our toes towards forward. We'll stretch it forward and we will exhale and we will stretch it inward. Inhale and exhale. Inhale and exhale. अब टोस के बाद अपने पैरों के पंजों को आगे की तरफ करेंगे। इनहेल आगे की तरफ करते हुए, एक्सहेल पीछे की तरफ। सांस लेते हुए पंजे आगे, सांस छोड़ते हुए पंजे पीछे। Inhale while putting our feet forward, stretching it forward. Exhale by stretching it inward. And now we will rotate clockwise by inhaling downwards and exhaling when it is upward. दोनों पैरों को, दोनों पंजों को एक साथ घुमाएंगे, नीचे की तरफ सांस लेते हुए, ऊपर की तरफ सांस छोड़ते हुए। सीधी दिशा में जाएंगे सांस लेते हुए और ऊपर आएंगे सांस छोड़ते हुए। अब उल्टी दिशा में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज वी विल मूव। इनहेल by going forward, exhale by coming inward. Both the toes, both the feet will be moving together. So this is the exercise for joints. We are actually freeing our joint. हम अपने joints को free कर रहे हैं ताकि आगे के आसनास में हमें दिक्कत ना हो। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको कि अगर आप हमेशा करेंगे तो आपके joints बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम से आप बचेंगे और कहीं पे भी कोई स्टिफनेस नहीं आएगी। रिलैक्स करेंगे पैरों को शेक करते हुए।
अब जब ये हिस्सा हो गया तो हम अपने नीज पे आएंगे, इसके भी स्टिफनेस को दूर करेंगे। तो कैसे दूर करेंगे? सांस लेते हुए घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। अगर हमारे यहाँ पे कोई सामान रहता तो इसको जैसे हम दबाते वैसे ही दबाने का प्रयास। सांस लेते हुए दबाएंगे और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। By inhaling, press the knees towards the floor, and by exhaling, relax yourself. सांस लेते हुए घुटने को नीचे की तरफ दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब अपने हाथों से अपने घुटने का मसाज करेंगे। ये जो हाथ का हिस्सा है कप, इस कप को बनाएंगे और अपने घुटने के ऊपर रखेंगे और इसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज 5 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। जब ये हो जाए तो अपने अंगूठे से घुटने के बाहरी तरफ में 5 बार प्रेस करते हुए गोल गोल घुमाएंगे। वी विल जस्ट रोटेट द सॉकेट ऑफ द नीज थ्रू आवर थंब clockwise 5 times and then anti-clockwise 5 times. So after doing this, now we will start with the right leg. So we will put our right leg on the left knee this way और अपने फिंगर्स को, अपनी उंगलियों को अपने टोज के बीच में फंसाएंगे। हर एक उंगली हर एक पैर की उंगलियों में फंसाएंगे इस प्रकार से। दूसरा हाथ यानी कि दाहिना हाथ, आपका राइट हैंड जो है वो जॉइंट पे, लेफ्ट लेग के जॉइंट पे रहेगा। इसे अच्छे से पकड़ लेंगे। रीढ़ की हड्डी पे हमेशा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रहनी चाहिए ताकि आप जो कर रहे हैं उसको आप एंजॉय कर पाए, क्योंकि जितना ज्यादा आप एंजॉय करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अब इसे ऐसे पकड़ते हुए सांस लेते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। सांस लेंगे नीचे, सांस छोड़ेंगे ऊपर, सांस लेंगे नीचे, सांस छोड़ेंगे ऊपर। कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए मन में। सांसों की आवाजाही के साथ ही हर एक अंग का हम लोग आसना के द्वारा एक्सरसाइज करते हैं ताकि ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो हर एक अंग में बना रहे। अब उल्टी दिशा में जाएंगे हम लोग। सांस लेंगे, वी विल इनहेल while going downwards, exhale while coming upwards. सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। Connect your body movements with the breath you take. There should be no rush while doing any of the asanas. अब ये जो राइट हैंड है इसको हम लोग ये राइट नी के ऊपर रखेंगे। ये फिंगर जो है वो टोज के बीच में फंसा रहेगा, इसको नहीं हटाएंगे। अब सांस लेते हुए इसको हम नीचे की तरफ दबाएंगे ताकि हमारा जो ये हिस्सा है ये रिलैक्स हो सके। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। जहां तक जा सकता है, कोई फोर्स नहीं करना है। जहां तक आपका बॉडी पार्ट अलाउ करता है वहीं तक लेके जाएंगे, जबरदस्ती नहीं करनी है। So when we will go downwards while pressing the knees, we will inhale and we will exhale while taking it diagonally towards the left shoulder. Inhale and exhale. Now we will bring this feet a bit more closer. Again the right hand on your right knee and we will try to rotate. So while going upwards, inhale, exhale while coming downwards. Very smoothly, very slowly, enjoy the whole process. Clockwise 3 times, anti-clockwise 3 times.
3 बार सीधी दिशा में, 3 बार उल्टी दिशा में। अब हम लोग अपने पैर को ऐसे रखेंगे, हाथ को जैसे हम लोग ऐसे फिंगर्स लॉक करते हुए यहाँ पे रखेंगे। पैर को सीधा स्ट्रेच करेंगे, बिल्कुल सीधा। इसको यहाँ पे सपोर्ट के लिए रखे रहेंगे। जहां तक जा सकता है वहां तक ले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग सांस लेंगे और पीछे आएंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। अब अपने हाथ को इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। पैर को अब घुमाएंगे। विल रोटेट आवर लेग जहां तक जा सकता है। प्लीज डोंट फोर्स योर बॉडी। बॉडी को फोर्स नहीं करना है। ऊपर की तरफ जाएंगे। इनहेल, एक्सेल व्हाइल कमिंग डाउनवर्ड्स। सांस लेते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। क्लॉकवाइज हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज विल गो। उल्टी दिशा से हम लोग जाएंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। नाउ वी विल ट्राई टू होल्ड इट दिस वे। जैसे किसी बच्चे को हम लोग कैसे गोद लेते हैं, when we take our child on our arms और उसको सुलाने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरीके से आपका ये पैर एक बच्चे की तरह आप इसे होल्ड करिए और इसे घुमाना है। आपका ये हिस्सा स्ट्रेच होता है, इस हिस्से में रिलैक्सेशन आता है। सांस लेते रहना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। यहाँ पे हम लोग को सांस लेना है, छोड़ना है, नॉर्मल ब्रीदिंग। ऑक्सीजन का फ्लो ऑन दिस पार्ट normal. I will put this leg downward. I will come to the left leg. Same process. The fingers of your right hand, lock it with the toes of your left leg. इस तरह से. And then your left hand on the joint of your left leg. सांस लेते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, चेहरे पे मुस्कान बने रहे। Smile should be on your face. Enjoy the journey, enjoy the process. जब 3 बार ऐसा कर ले, फिर उल्टी दिशा में 3 बार करेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। ये योगा का बिल्कुल बेसिक चीज है, इसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी आप कोई आसना करें, उसके पहले इन चीजों को जरूर करें, क्योंकि इससे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। अब हम अपने हाथ को यहाँ पे रखेंगे। सांस लेते हुए पुट योर नी डाउनवर्ड्स, प्रेस इट डाउनवर्ड, एक्सेल एंड देन ट्राई टू bring it towards your right shoulder. सांस लेते हुए नीचे की तरफ, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। Very smoothly we will do it. Inhale while pressing it downwards. Exhale by taking it towards the opposite shoulder. अब इसे और पास थोड़ा लाएंगे। And now we will rotate it. सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। उल्टी दिशा में चलेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब यहाँ पे हाथ रखेंगे, फिंगर्स को लॉक करते हुए, नीज के जस्ट नीचे हाथ रखेंगे। स्ट्रेच करेंगे पैर को आगे की तरफ जहां तक हो सकता है। कोशिश करेंगे कि नी लॉक हो, नी मुड़ा हुआ नहीं रहे।
सांस लेते हुए, पीछे की तरफ सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए योर टोज शुड बी पॉइंटेड, पंजे आगे की तरफ होंगे। सांस छोड़ते हुए पंजे पीछे की तरफ, टोज इनवर्ड। Pointed toes while stretching it forward. Inhale, exhale while bringing it inward. अब इसे ऐसे पकड़ेंगे, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, विपरीत दिशा। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब फिर से अपने बाएं पैर को बच्चे की तरह गोद में जैसे लेते हैं। ट्राई टू रैप इट ऑन योर आर्म्स एंड देन वी विल मूव इट, स्विंग इट। सांस लेते रहेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे और बहुत आराम से इसे घुमाएंगे। नाउ आपका ये जो लोअर पार्ट है ये बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से आएंगे इस वाले पार्ट में। जनरली जब हम लोग योगा करते हैं तो हम लोग हमेशा डाउनवर्ड से शुरू करते हैं। जब हमारा डाउनवर्ड्स हो जाता है, नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ आते हैं। तो अब लेग्स हो चुका है, अब हम लोग कमर वाले पार्ट में आएंगे, इस हिस्से में आएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे बैठने की। जो इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं, जिनके नीज में प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, वो जैसे बैठे हैं वैसे बैठ सकते हैं। वो ऐसे भी बैठ सकते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं। अपना जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है बैठने का, आप वैसे बैठ जाइए। और जो बच्चे हैं वो जैसे बैठते हैं वैसे बैठे, ऐसे बैठ सकते हैं अगर वो ऐसे बैठ जाएं। अब अपने कमर के पास हाथ रख लेंगे इस प्रकार। सांस लेते हुए कमर को आगे की तरफ करेंगे। सांस छोड़ते हुए कमर को अंदर की तरफ। सांस लेते हुए आगे, छोड़ते हुए पीछे, लेते हुए आगे, छोड़ते हुए पीछे। नाउ दिस पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपका स्पाइन है। योर स्पाइन शुड बी वेरी हेल्दी बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द ब्रेन। आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो टोटली ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ये पोस्चर हमेशा आपका करेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। और इस जगह पे मोस्टली लोगों को दर्द होता है। बच्चे भी बहुत टेंडर एज में, बहुत कम एज में शिकायत करते हैं इसकी। तो इसके लिए इसी से रिलेटेड एक आसना करेंगे हम लोग, जिसे हम उष्ट्रासन बोलते हैं। कैमल पोज, विल ट्राई टू डू द कैमल पोज। इस तरीके से हम लोग रहेंगे। इस हाथ को ऊपर, सांस लेते हुए हाथ को यहाँ पे लाएंगे। फिर लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, सांस लेते हुए लेफ्ट फुट के पास रखेंगे और ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, शोल्डर रिलैक्स रहेगा। पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। अब शुरुआत में अगर दिक्कत होती है तो सिर्फ राइट हैंड को राइट पे रखिए और इस हाथ को ऊपर रखिए। इट इज अ मोर easier variation of camel pose. Gradually we will try to do the normal camel pose. So this is the easier one, and when we will be easily doing it, smoothly doing it, then we will come and do the normal camel pose. So this one is for the stiffness that or the pain that you are having around your waist. Now, as gradually we will move on towards the next days of this summer camp,
I will be giving you much more tips related to the other parts of the body. Today, since we are having shortage of time because other people are also there for other activities for you people. So अब हम यहाँ से I will tell you some asanas that can remove your stress, that can increase your concentration. Because अभी के सिनेरियो में क्या है, लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं जिन चीजों में उनको एक्चुअली में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. सो सारी नेगेटिविटी जो आती है उसको एक झटके में हम लोग दूर कर सकते हैं. एंड द मोस्ट इजियर पार्ट टू टेक इट आउट, टू रिमूव ऑल द स्ट्रेस इज प्राणायाम. तो अब हम लोग प्राणायाम करेंगे. सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अनुलोम विलोम से. तो अनुलोम विलोम में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली आप लोग जिस मुद्रा में बैठ सकते हैं उस मुद्रा में बैठ जाइए. अगर ऐसे सुखासन में बैठ सकते हैं तो ऐसे बैठ सकते हैं, जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठ जाएं. और अगर जो चेयर पे बैठे हुए हैं, सोफा पे बैठे हुए हैं, तो वो वहां पे भी बैठ के इस प्राणायाम को कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड को मुद्रा में रखेंगे हम लोग. अनुलोम विलोम में थंब का और ये इस उंगली का प्रयोग होता है, अनामिका का प्रयोग होता है. ठीक है. और ये बाकी दोनों उंगलियां आपके फोरहेड पे रहता है. यहां से हम लोग राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं और लेफ्ट से सांस लेते हैं. और जब हम लोग सांस पूरी ले लेते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करते हैं और राइट से सांस छोड़ते हैं. और जब राइट से सांस छोड़ देते हैं तो फिर राइट से ही सांस लेंगे एंड लेफ्ट से छोड़ेंगे. Inhale from your left nostril, close your left nostril, exhale through your right nostril. Again, exhale from your right nostril and exhale from your left nostril. Inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. So अनुलोम विलोम में हमेशा याद रखेंगे, हम लोग इनहेल करते हैं जिससे, दूसरे से एक्सेल करते हैं, और जिससे एक्सेल कर देते हैं फिर उसी से इनहेल करते हैं, फिर पहले वाले से एक्सेल करते हैं. और कोशिश करिएगा ये दोनों उंगलियां आपके इस जगह पे हो, क्योंकि ये जो आपका हिस्सा है, ये हिस्सा आपके कंसंट्रेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. तो आपका ये जो चक्र होता है, ये चक्र आपका अलाइव हो जाता है जब आप इसको यहाँ पे रखते हैं और आंखें बंद करते हैं और ब्रीदिंग टेक्निक यूज करते हैं. तो कोशिश करिएगा कि इस उंगली को अनुलोम विलोम के समय यहाँ रखें. नेक्स्ट है नाड़ी शोधन. इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों उंगलियां अंदर की तरफ रखते हैं बंद, और थंब का और इसका प्रयोग करते हैं. जिस तरीके से अनुलोम विलोम कर रहे थे उसमें जैसे ब्रेथ ले रहे थे, ठीक उसी तरीके से द सेम वे वी विल टेक ब्रेथ व्हेन व्हाइल वी वर डूइंग अनुलोम विलोम. बस इसमें एक चीज और करेंगे, जैसे हम लोग सांस लिए, सांस छोड़े, सांस लिए, सांस छोड़े, यहां तक अनुलोम विलोम की तरह. अब यहाँ पे एक स्टेप और है, हाथ हटा के दोनों नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, ब्रेथ को होल्ड करेंगे 5 सेकेंड के लिए, 1 2 3 4 5 एंड सांस छोड़ेंगे. तो दिस इज फर्स्ट साइकिल ऑफ नाड़ी शोधन. फिर से करेंगे हम लोग. इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट, exhale from the right, exhale from the right, inhale from, now take out your, now you will take from both the nostrils, hold 1
2, 3, 4, 5, and exhale. Once more we will do this. Inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Now take from both the nostrils, we will inhale. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, and exhale. Now during this whole corona process, pranayam is very important. बाकी जो चीजें आप करते हैं करते रहिए, प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स जो कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोरोना से, या फिर नॉर्मली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी जो स्थिति है इस स्थिति के लिए प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग डेली करें। तीसरा मैं बताऊंगी, इसको कहते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में फिर से हाथ इसी मुद्रा में रखेंगे, हम लोग जीभ को बाहर निकालेंगे, इस तरीके से फोल्ड रहेगा जीभ, और जीभ को बाहर निकाल के सांस को अंदर खींचेंगे। यू विल फील द कूलिंग, और फिर जीभ को अंदर करेंगे एंड नॉर्मल नाक से सांस छोड़ेंगे। सो रोल योर टंग, टेक इट फॉरवर्ड, इनहेल, अंदर करेंगे टंग को, एक्सहेल फ्रॉम योर नोज। एक बार और करेंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे, सांस लेंगे, जीभ अंदर करेंगे, नाक से सांस छोड़ेंगे। इसे हम शीतली प्राणायाम बोलते हैं। कभी भी आप महसूस करिएगा जब आपको बहुत गर्मी लग रही होगी, जब आपका मन बिल्कुल बेचैन होगा, उस समय भी अगर आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आपको बहुत ठंडा, बहुत कूलिंग फील होगा, इसलिए इसको हम लोग शीतली प्राणायाम बोलते हैं। अब यहाँ से हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम आपके लंग्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, लंग्स को बहुत हेल्दी बनाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सांस लेते हैं, शोल्डर्स, चेस्ट, स्टमक बाहर की तरफ, और सांस छोड़ेंगे, शोल्डर, चेस्ट, स्टमक अंदर की तरफ। सांस लेंगे बाहर की तरफ, सांस छोड़ेंगे अंदर, सांस लेंगे, पेट बिल्कुल बाहर की तरफ आ जाएगा, चेस्ट बाहर, शोल्डर बाहर, सांस छोड़ेंगे अंदर। We are expanding our stomach, chest and shoulder while inhaling, and while exhaling we are contracting our shoulder, chest and stomach. इसे हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। कभी भी स्ट्रेस हो, हेडेक हो, बहुत हेल्पफुल प्राणायाम है। दिस इज वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस, योर एंजाइटी and increasing your concentration. So anybody of any age has a lot of benefit through this kind of pranayam. इसमें क्या करते हैं, अपने दोनों थंब को कान को बंद करते हैं दोनों थंब से, बाकी उंगलियां सिर के ऊपर रहती हैं, जीभ को रोल करके अपने तालू के ऊपर रखते हैं, मुंह बंद रहेगा, और 3 बार म का उच्चारण करते हैं सांस भरते हुए। इसे भ्रमरी प्राणायाम इसलिए कहते हैं कि जो आवाज आती है वो भ्रमर की तरह, द साउंड ऑफ अ बी, भ्रमर की आवाज आती है, इसलिए इसे भ्रमरी प्राणायाम करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग उड्डयनी प्राणायाम करेंगे। इस प्राणायाम में गहरी सांस लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम
Om. शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ शान्ति शान्ति शांति। अगेन वी विल रब आवर पाम्स, आंखें बंद रखते हुए और आंखों के ऊपर रखेंगे। रिपीट द प्रोसेस 3 टाइम्स, 3 बार इस प्रक्रिया को करेंगे। एंड वेरी जेंटली विल ओपन आवर आईज। सो आज का योगा जर्नी का जो पहला पार्ट था, मैं यहीं पे इति करना चाहूंगी। कल हम लोग फिर मिलेंगे कुछ और आसनास के साथ, कुछ और टिप्स के साथ। और तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहिए, स्टे सेफ, मास्क यूज करिए, अगर जहाँ पे भीड़ हो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, एंड स्टे हेल्दी।